Hey guys, what's up? It's Raj here. Today we are discussing about the chapter 12, that is the sound. Production of sound. What is the topic? The sound. A sound is a form of energy that produces a sensation of hearing in our ears. The formation of sound involves the transformation of energy. And next topic है आपका production of sound. A sound is produced by the vibration of matter. Example देखेंगे. तो एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट इट प्रोड्यूसेस द साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है, फॉर्म ऑफ वेव के जैसा होता है. एग्जांपल अगर हम लोग देख लें क्या होगा गाइस. व्हेन वी क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस हेयर द मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ आवर हैंड इज कवरिंग इनटू साउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज वी स्ट्राइक बोथ हैंड्स एंड द हैंड वाइब्रेट विच causes the production of sound. And the second is when we plug the strings of guitar, they vibrate and produce sound. And the stretch strings of the guitar possess the potential energy. And when we plug the guitar string, potential energy is converted into the kinetic energy as the string start vibration, and this vibration of a string produces sound. That's it. एक tip है, remember the rapid to and from motion is called the vibration. So one vibration is completely when a vibrating object goes from the extreme position to the another extreme position and come back to the initial extreme position. So the propagation of sound. The next topic is that what is that we understand that the sound needs a medium to propagate, and the medium is the matter, a substance through which the sound transmit. It can be solid, liquid, a gas. And when the sound travels through a medium, the particles in the medium simply vibrate about their mean position, and they do not travel from one place to other. So it is the disturbance, yes, sound wave that travels to propagate sound. That's it guys. Next है आपका, देख सकिए यहाँ पिक्चर एक दिया हुआ है. देखिए कंप्रेशन हो रहा है, रियर फ्रैक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे एक स्पीकर है, आपका एयर है. तो यहाँ पे कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होते होते हमारे कान के पीछे में पहुँच रहा. एक नोट बिलो है, देख सकते हैं. हाँ, रिमेंबर द साउंड डज नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम एंड इस इट इज द वैकेंट एंड नो मीडियम इज प्रेजेंट टू प्रोपागेट द डिस्टर्बेंस in the medium. So the disturbance in the medium is called wave, and the sound is visualized as a sound wave like soon. तो disturbance in a medium क्या हो जाता है आपका, देख सकते हैं एक सेकंड पिक्चर में. disturbance occur when the vibrated object move backward first of all, and the second disturbance occur when the vibrate object move forward. फिर आपका disturbance occur when vibrate object moves forward, और ऊपर में आपका देख सकते हैं स्क्रीन में कि disturbance occur when the vibrate object move backward. So there is a time and disturbance in the medium. Example देखेंगे. How do the compression and rarefaction involve in the variation in density and pressure? Involve the variation in density and pressure. A compression in a region of the medium in which the particles are compressed, and that is the particle come closer and the area of high pressure is created, and due to this the distance between the particle become less as compared to the normal distance between them. So thus there is a temporary decrease in the volume, and which increases the density of the medium as the volume inversely proportional to the density. The density directly proportional to the mass but inversely proportional to the volume. We can say that. ठीक है. और एक बात है यहाँ पे देख सकते हैं आप, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. दैट्स इट. फिर आपका एक देखिए पिक्चर है यहाँ पे. पार्टिकल्स नियर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बिफोर वाइब्रेशन. तो पुशिंग द मॉलिक्यूल, जब हम लोग मॉलिक्यूल को पुश करेंगे तो व्हेन, देखिए ए और बी पोजीशन है यहाँ पे, व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इन द रीजियन. तो यहाँ पे सी है. फिर आपका क्या है, पुलिंग द मॉलिक्यूल्स ए टू बी है. व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस इन द रीजियन. That's it. So similarly in the rarefaction, the particle gets further apart and the area of low pressure is created, and thus there is a temporary increase in the volume which result in the decrease in the density. That's it.
एक टिप है या नोट बिलो है, देखते हैं इसको। रिमेंबर साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव बिकॉज द मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन and sound needs a medium to travel. That's it. And although light is not a mechanical wave, light does not need a medium to travel. It can travel through the vacuum. तो पहला आपका आता longitudinal wave. When the direction of disturbance in the medium and the direction of propagation of wave are in the same direction of the wave are called the longitudinal wave. Example आपका sound waves are the longitudinal wave. And transversal wave आपको when the direction of disturbance in the medium and the direction of propagation of the wave are perpendicular to each other, the wave is called the transversal wave. Example है light is the transversal wave. That's it. Next देखेंगे आपका फिर एक पिक्चर आपका स्क्रीन पे देख सकते हो आप, कंप्रेशन है, रिफ्रैक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम में, फिर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव है। फिर क्या होता है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव अप एंड डाउन। फिर आपका क्या होता है ट्रांसवर्स वेव है। फिर डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम है, देख सकते हो ऊपर नीचे करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। If we heat on the drum surface, the wave produced is the longitudinal wave as the drum membrane moves outward and inward, and the disturbance in the particle also moves in the same direction. और एक आपका टाइम पीरियड होता है। तो what is the time period? The time taken by the vibrating object for one complete oscillation is called the time period of the sound wave. फिर आपका टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी, ठीक है। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल टी से। एंड द एसआई यूनिट टू मेजर द टाइम पीरियड इज सेकेंड, क्योंकि स्मॉल एस एस को हम लोग डिनोट करते हैं। फिर आपका एग्जांपल आएगा इन अ वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साउंड एस बिलो। जो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम में आपका T1 T2 T3 T4 हमारा टाइम है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ है कैसे यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे है the sound wave takes the time t2 to complete one oscillation, and therefore the time period of sound wave in this case is t2 second. For frequency v, the number of oscillations made per second is called the frequency of oscillations, and it is denoted with the Greek symbol nu या v, and the frequency is expressed in hertz, ठीक है। तो frequency इक्वल्स टू आपका हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। उसका बाद क्या आपका एग्जांपल है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव शोन बिलो, ठीक है। क्या होगा डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम 0.5 1 सेकेंड 1.5 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम आपको सेकेंड्स है। फिर डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम है, दोनों का ग्राफ है। तो सॉल्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 2 हर्ट्ज बिकॉज इज कंप्लीट द ऑसिलेशन 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किया है सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर में गाइस। फिर आपका आता है एम्पलीट्यूड क्या हो गया द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। एक सेकंड गाइस, तो एक्चुअल में जो हम लोग का एम्पलीट्यूड है वो एक्चुअल में होता क्या है गाइस, एक सेकंड गाइस। हाँ, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन इज नॉन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। मैंने इसको 2 बार इसलिए पढ़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के लिए आपका एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर। एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। इन द साउंड वेव गिवन बिलो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज OA एंड OB, एंड देयरफॉर OA या OB इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साउंड वेव। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। फिर आपका मैक्सिमम ए है, सेंट्रल पोजीशन O है, AO है, OB है। फिर आपका T1 T2 T3 करके टाइम सेकेंड में है। फिर मैक्सिमम भी है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पे आपका लैम्डा, तो wavelength is denoted by lambda. So wavelength is the distance between the two consecutive compression या two consecutive refractions. That's it is denoted by the Greek letter by lambda, and the wavelength is measured in meter. We can measure in meter. आप स्क्रीन पे देख सकते हो the disturbance in a medium maximum है, central position हो, maximum भी है। तो wavelength हमारा लैम्डा है। तो उसके बाद क्या है wavelength लैम्डा में क्या हो गया T1 T2 T3 सेम ग्राफ बना दिया हम लोग ने। तो अब आता है आपका लाउडनेस क्या होता है। द वॉल्यूम ऑफ साउंड इज अ लाउडनेस या सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट इज कॉल्ड डेसिबल गाइस। इसको dB से डिनोट करते हैं, लाउडनेस को डेसिबल से डिनोट करते हैं। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो लाउडनेस इक्वल टू होता है आपका एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। सिंपल आपको जानना है कॉन्सेप्ट को, देहाती कॉन्सेप्ट है। लाउडनेस इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। एंड पिच
It is a characteristic of the sound which helps the distinguish between the different sound of the same loudness. ठीक है, and the pitch of sound is directly proportional to its frequency. That's it. And when the frequency of sound increases, the pitch also increases. Sound increase कर दिया हम लोग का pitch भी increase हो जाएगा इससे. Next हम लोग देखते हैं guys, टोन. टोन क्या होता है? अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन. ठीक है, अरे बहुत सारा बातों में ही यूज़ किया जाता है, योर टोन इज़ नॉट गुड या समथिंग लाइक दैट. तो एक्चुअली वो टोन यही टोन होता है. साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन. ठीक है, मजाक कर रहा था, जोक्स अपार्ट. तो आपका गाइस एक नोट है, अ साउंड प्रोड्यूस विद अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट. ठीक है, एक नोट भी होता है आपका. उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी इज पासिंग each second through the unit area is called the intensity of sound. So the intensity equals to energy into time divided by area. The SI unit of intensity of a sound is joule meter to the power minus 2 second inverse. और आपका आता है स्पीड ऑफ साउंड. तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा गाइस? द स्पीड ऑफ साउंड डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पॉइंट ऑन द वेव सच एज कंप्रेशन या रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम. दैट्स इट. तो हमारा स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया गाइस? डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, ये फॉर्मूला है. तो अब क्या किया हम लोग? डिस्टेंस इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव लैम्डा. ओके, एंड द टाइम इज द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव. तो हम लोग क्या कि इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो रिप्लेस कर दिए इसको 1/t से v को. ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड को क्या किया हम लोग? स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा इंटू v कर दिया. जहाँ पे क्या हो गया? रिमेंबर वन थिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच दिस प्रोपागेट्स. एकदम सिंपल बात है. द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, आपका टेम्परेचर ऑफ मीडियम से भी होगा. एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रिक्वेंसी, ऑल्दो द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड अफेक्ट्स इज शेयरलेसनेस. ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. स्पीड ऑफ साउंड इज हायर इन सॉलिड एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड हायर इन लिक्विड एज कम्पेयर टू गैसेस. An increase in temperature increases the speed of sound and vice versa. Example होता है the sound of frequency 20 Hz is moving with a speed of 344 meter per second. And what will the wavelength of this sound wave? So we know that the relation between the speed of sound and the wavelength and the frequency as well. So स्पीड इक्वल टू आपका वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी हो गया, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू v हो गया. तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका फ्रिक्वेंसी बाय बी. ठीक है, तो यूजिंग द रिलेशन कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ साउंडिंग हैविंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज. तो हम लोग वैल्यू बैठा देंगे तो हमारा लैम्डा का वैल्यू 17.2 आ जाएगा गाइस. अब आता है गाइस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज़ दैट? द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पहले पढ़ते हैं हम लोग. तो साउंड is the reflected on the surface of a solid liquid like a light ray and follow the same law of reflection that light obey. ठीक है, फिर आता है गाइस आपका, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इको सबसे इम्पोर्टेंट है. द रिपीटेशन ऑफ ए साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको. फिर आपका आता है रिवाइब्रेशन. The repeated reflection of a sound from the walls, ceiling and floor of the hall that results of a sound caused by a reflection of sound. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इजीली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फिर आता है आपका डिस्टेंस सेंसर, सेंडर, ऑब्जेक्ट. यहाँ पिक्चर में देखिए रिफ्लेक्टेड वेव या ईगो, ओरिजिनल वेव, तो दे आर रिफ्लेक्टिंग टू ईच अदर. ठीक है, कैसे? While solving questions having the echo scenario, remember in the time the interval the echo is heard and the sound covered twice the distance between the source and the obstacle. ठीक है, so sound reaches the optical and get reflected back to the listeners. So consider twice of the distance when we solving numerical. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप था गाइस. ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे. Why do we not hear an echo in the room which is occupied with the object? क्यों होता है बताता हूँ. बिकॉज वी कैन हेयर द इको व्हेन देयर इज़ अ मिनिमम टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड इन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड. ओके, एंड व्हेन द रूम इज ऑक्यूपाइड विथ द ऑब्जेक्ट द साउंड रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन लेस देन 0.1 सेकेंड. सो वी डिड नॉट हेयर द इको. For the hearing echo, there should be at least a distance of 17.2 meter between the sound of source पहला and the body from which sound is reflected. In a small room, this is not the case and hence echo are not here. The uses of multiple reflection of sound देखेंगे guys यहाँ पे.
तो गाइस हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जहाँ पे क्या है डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक मेगाफोन्स, लाउड स्पीकर हॉर्न्स, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइन टू सेंड द साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन without spreading all around. The conical opening reflects sound waves successfully towards the audience, and the amplitude of a sound wave also adds up in this instrument, and that increase the loudness of the sound. Okay, and the second is stethoscope. It is a medical instrument used for the hearing sound in the human body, mainly the heart and lungs. And the sound of the heartbeat reaches the doctor's ear by the multiple reflections of the sound wave in the rubber tube of the stethoscope. Number third, curve ceiling for a multiple reflection. The ceiling of concrete halls and conference halls, cinema halls, ठीक है, सॉरी कंसर्ट हॉल, सॉरी सेलिंग ऑफ द, जहाँ पे आपका कॉन्सर्न होता है, कॉन्सर्न हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा हॉल्स आर मेड कर्व सो दैट साउंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सीलिंग रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द हॉल. फिर आपका चौथा नंबर आता है कर्व्ड बोर्ड, या इसको साउंड बोर्ड भी कहते हैं. समटाइम्स द साउंड इन बिग हॉल्स आर ऑब्जर्व बाय वॉल, सीलिंग, सीट एक्सेट्रा. So a curved board is placed behind the stage, and that helps the audience to hear the sound easily because of the multiple reflections of sound from the soundboard. तो साउंड बोर्ड है, साउंड सोर्स ऑफ साउंड देख सकते हैं. यहाँ पे क्या हो गया, रेंज ऑफ हेयरिंग है. ठीक है, एक सेकंड गाइस. तो गाइस यहाँ पे रेंज ऑफ हेयरिंग देखेंगे. तो रेंज ऑफ हेयरिंग फॉर द ह्यूमन ईयर, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. इंफ्रासाउंड का देखेंगे, साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड. फिर एनिमल्स लाइक एलिफेंट, व्हेल्स एंड राइनोसोरस प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स. ओके, फिर आपका आता है अल्ट्रासाउंड. साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दैन अबाउट 200 किलो हर्ज. ठीक है, किलो हर्ज ही होना चाहिए मेरे हिसाब से. KHZ शायद, एक सेकंड रुको गाइस, देखता हूँ इसका क्या होता है. ठीक है, के हर्ज हो गया. आर नॉन एज अल्ट्रासाउंड. एनिमल्स लाइक डॉग्स, डॉल्फिन, बैट्स एंड रेट्स कैन हेयर अल्ट्रासाउंड. ठीक है, हर्ज तो होता है, लेकिन KH थोड़ा सा मेरे को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा KH को. ठीक है गाइस. तो HZ का मतलब आप कंफर्म रखो हज ही होता है. ठीक है, एनिमल्स लाइक डॉग्स, डॉल्फिन, बैट्स, रेट्स कैन हेयर अल्ट्रासाउंड एंड बैट्स एंड रेट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड. ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. ठीक है, नोट, अ ह्यूमन हेयर आर नॉट एबल टू डिटेक्ट आइदर इंफ्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, हेंस द साउंड ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी आर कॉल्ड इनऑडिबल sounds. Okay, example है आपका a sound wave having the time period of 0.04 second, and thus this sound is audible to a human being. It is given that the time period of the sound wave t is equal to 0.04 second, and let the frequency of sound wave f, and we know that the frequency of sound wave f is equal to 1 by t. So the f is equal to 1 divided by 0.04, and f is equal to आपका 25 हर्ज हो जाएगा. The frequency of the sound wave is 25 hertz. We know that the audible range for the human being is 20 hertz to 20 kHz. ठीक है,
hence the sound will be audible to human as it is the audible range. तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू क्लीन हार्ट टू रीच द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज स्पाइनल ट्यूब्स, ऑड शेप्ड पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, एक सेकेंड रुकना, KHz जो है ना किलोहर्ट्ज, उसको मैं क्लियर करता हूँ अभी, एक सेकेंड गाइस। अभी मैंने गूगल में जाके चेक किया हूँ, ठीक है, इज्जत बच गया मेरा, किलोहर्ट्ज ही होता है, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा था ठीक से, ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन सही बताया था मैं, किलोहर्ट्ज ही होगा। सेकंड देखते हैं गाइस, अल्ट्रासोनिक इज यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स, फ्लॉस इन द मेटल ब्लॉक्स इन द इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन विदाउट डैमेजिंग देम। And number third, ultrasound is used in ultrasound scanner by the doctor to investigate the internal organ of the human body, such as liver, gallbladder, kidney, etc. And the technique of obtaining picture of internal organ is called ultrasonography. इसी को आपका अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, और प्यार से इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। बस गाइस, नेक्स्ट है आपका ultrasonic wave are used to reflect from the various part of the heart to form the image of heart that inform about its functioning, and this technique is called ECG। हम लोग को डॉक्टर बोलते हैं ना ECG कराना होगा, इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, दैट्स इट। तो अल्ट्रासाउंड इज यूज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन इनटू द किडनी इनटू अ फाइन ग्रेन्स, ठीक है, तो वही बात है गाइस। फिर आपका सोनार आता है, सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा गाइस। अगर आप फ्यूचर में BSc लेते हैं, खास करके जूलॉजी में है या बॉटनी में, किसी में भी, तो सोनार वहाँ पे भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसको अच्छे से कर लेंगे गाइस, ठीक है। +2 में भी है सोनार। तो सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज द डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर दैट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड अ डिटेक्टर दैट रिसीव द रिफ्लेक्टेड बैक साउंड। फिर आपका आता है इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द रिसीविंग ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल इज स्मॉल t, द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन सी वाटर इज v, and the distance between the obstacle and the ship is d. The total distance covered by the signal in time small t is equal to 2d. By using the relation distance is equal to speed into time, तो 2d is equal to आएगा v into t. Fact, BAT uses the same processes as sonar device to catch prey, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो गाइस इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जांपल है, अ शिप इज फिटेड विद अ सोनार डिवाइस, द टाइम टेकन बाय द सोनार डिवाइस टू सेंड अ साउंड सिग्नल एंड रिसीव द इको बैक आफ्टर द हिटिंग द ऑब्जेक्ट इन 3 सेकेंड। फुल स्टॉप। इफ द स्पीड ऑफ अ साउंड इन वाटर इज 1400 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द शिप। सॉल्यूशन है, given that the speed of sound is in water is 1400 meter per second and the time taken to send the signal and receive it back in the 3 seconds, the total distance covered by the sound wave equal to speed into time, तो 1400 into 3 तो 4200 मीटर हो गया। Since the sound signal has covered the distance twice, first when the signal was sent and second after the sound signal was hit by the object and the received back, thus the distance between the object and the ship will be the half of the total distance calculated, that is। फिर आपका नेक्स्ट है, therefore the distance between the object and the ship 4200 divided by 2 is equal to 2100 meter। Note, we can also solve this question directly using 2D या v into t। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर देखिए यहाँ पे, तो वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन ईयर, यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। और यहाँ पे स्किन पे आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये पिना है, हैमर है, एंड्रील है, स्टीरियप है, ओवल है, विंडो है, ऑडिटरी नर्व है, कॉक्लिया है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या इसको हम लोग एयर ड्रम बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल, स्टाचियन ट्यूब, ये आउटर मेम्ब्रेन, मिडल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो पिक्चर है वो NCERT से लिया गया है, और ये नोट्स जितना भी है सब NCERT का है। नेक्स्ट आपका आउटर ईयर, द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना,
It's collect the sound from the surrounding and passes it in the middle ear through the auditory canal. And the middle ear, what is the middle ear? The concept of middle ear is that at the end of auditory canal there is a thin elastic membrane is called the eardrum. यहाँ तक क्लियर है गाइस? ठीक है, अब बस ये चैप्टर फिनिश होने वाला है और मेरे को भी कहीं जाना है. ठीक है, तो when the compression of sound strikes the eardrum तो गाइस हम लोग जैसे मिडिल ईयर में देखेंगे, आपका यहाँ पे देख सकते हैं एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल. ठीक है, auditory canal there is a thin elastic membrane is called eardrum, and when the compressor of sound strike the eardrum pushes inward, and while the rarefaction eardrum moves outward, thus the eardrum start vibrating. The middle ear consisted of 3 bones, hammer, anvil and stirrup, and these bones amplify the vibration, and the amplified sound waves passes from the middle ear to the inner ear through the oval window. That's it. नेक्स्ट है आपका इनर एयर. क्या होता है? द इनर एयर ऑफ द ओवल विंडो इज कनेक्टेड विद द कॉइल ट्यूब structure is called cochlea that convert pressure vibration into the electrical signal. That's it, so simple. And the other side of cochlea is connected to the auditory nerve which sends these electrical signals to the brain, and the brain interprets them as a sound. Thank you guys. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for your love, how much you can to me. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. अपना ख्याल रखना दोस्तों और अच्छे से पढ़ो. एंड